پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ خداوند کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہے۔ ویلکم آن بلیو ٹی وی پروگرام کنگڈم آف گاڈ۔ آج ہم اس پروگرام کا چھٹا حصہ دیکھیں گے اور ہم آج بائبل مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی چند آیات کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے اور جانیں گے کہ جہاں پر یسوع المسیح نے یہ فرمایا کہ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہونے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور آپ سب اس واقعہ اس سٹوری سے واقف بھی ہوں گے کہ کس طرح سے جو ایک یہودیوں کا سردار نیکو دیمس جس کا نام تھا، اس نے جب خدا کی بادشاہی کے پیغام کو سنا تو جب یسوع المسیح منادی کر رہے تھے، وہ ہر روز اس پیغام کو گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں ٹو گاؤں، شہر ٹو شہر یہ منادی کر رہے تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب خداوند یسوع المسیح نے ایسے عجیب کاموں کے سبب سے اور بہت سارے ایسے معجزات کے وسیلہ سے خدا کی قدرت کو ظاہر کیا، تو جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح سے معجزات وقوع پذیر ہوتے تھے تو یسوع المسیح جو وہاں کے لوگ ہوتے تھے ان کو منع کرتے تھے کہ ان باتوں کا چرچا نہ کرنا۔ لیکن جیسے جیسے خداوند یسوع المسیح نے معجزات کو کرنا شروع کیا، اپنی منادی کو بڑھانا شروع کیا، ویسے ہی جو ہے یسوع المسیح کا چرچا جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اور اس چرچا کے بارے میں جو یہودیوں کا سردار ہے نیکو دیمس، اس نے بھی سنا ہے، اس نے بھی اس کے پیغامات کو سنا ہے، اور رات بھر یعنی تقریباً ہسٹری یہ بیان کرتی ہے کہ تقریباً رات کے 2 بجے وہ یسوع المسیح سے ملنے آیا ہے۔ اور آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے دیکھیے گا 3 باب کے اندر یوحنا کی انجیل، اس میں پہلی آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ اور بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب سے پہلے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یسوع المسیح نے 4 انجیلوں کے اندر صرف ایک بار ہی اس کا ذکر کیا ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کا،
लेकिन खुदावंद की बादशाही का पैगाम जो है उसने हर बारहा दफा यीशु मसीह ने बताया कि खुदा की बादशाही कैसी है और कब और किस तरह की है। और ये यीशु मसीह की पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है। पब्लिक स्टेटमेंट ये है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बात चाहिए, बल्कि ये एक रात के वक्त एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन हुई है यीशु मसीह की और निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है। पहली बात हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार ही इसका नए सिरे से पैदा होने का जिक्र किया, और वो भी किसके लिए? खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होने के लिए। हमने इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होने का, तो वो नए सिरे से पैदा होने का है। अब यहां पर जो निकोदेमुस है वो यीशु मसीह से जब मिलता है तो वो क्या कहता है? रात 2 बजे का तकरीबन वक्त है, और इससे मिलकर कहता है कि ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। इस बात को वो जानता है कि ये एक उस्ताद है और खुदा की तरफ से है, खुदा इसके साथ है। जो मुझे ये दिखाता है कोई और दिखाता नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हमें इन बातों से ये मिलता है कि उस वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग और भी थे जो मौजूद दिखाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने खुदा की कुदरत को जो है वो जाहिर किया है। और जब उसकी कुदरत को उसने देखा है तो जो यहूदियों का सरदार जो है वो भी यीशु मसीह से इस बात को जानने के लिए कि ऐसे मौजे कोई दिखा नहीं सकता है जब तक खुदा उसके साथ नहीं है, वो रात के 2 बजे यीशु मसीह के पास आ गया है और रात भर सो नहीं पाया है। इस चीज का जवाब चाहता है, लेकिन उसने जो बातें की हैं उसके मुतरादिफ देखिए यीशु मसीह का जवाब क्या है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। बड़ी ही खूबसूरत बात यीशु मसीह ने कि मैं तुझसे सच कहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह खुद सच्चाई है, और जो कोई सच्चाई से वाकिफ हो जाता है यीशु मसीह उसे आजाद कर देता है। हालेलुया, वो आजाद हो जाता है। वे कलाम भी यही सिखाता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब इस बात को सुनते ही जो निकोदेमुस है उसके माइंड के अंदर, उसके जहन के अंदर एक कश्मकश है, और वो ये सोच रहा है कि मैं रब्बी यानी यीशु मसीह से जो बातचीत कर रहा हूं उसका जो जवाब मुझे मिला है वो तो बहुत फर्क है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि जो मौसा तू दिखाता है वो कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह उसका जवाब ये दे रहा है कि कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। अब उस पर वो ताजुब करता है और ये फरमाता है यीशु मसीह से, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? अब वो ये सोच रहा है कि लगता है मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, अपनी मां के पेट में जाना पड़ेगा, और वो ये सोच रहा है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं और ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है? ये कैसा जो जवाब है, जो रब्बी है, उस्ताद है, यीशु मसीह उसने मुझे दिया है। लेकिन आगे यीशु मसीह का जवाब बड़ा ही खूबसूरत। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं। फिर से सच्चाई की बात की गई है कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। अब यहां पर जो पैदा होने का जिक्र आया है, बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स इसको कई तरह से मानते हैं। पानी
سے پیدا ہونا، بہت سارے لوگ اس بات کو پانی کا بپتسمہ کے طور پر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ کلام سے پیدا ہونا کو کہتے ہیں، پیدا ہونا بہت سارے لوگ اس بات کو پانی کا بپتسمہ کے طور پر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ کلام سے پیدا ہونا کو کہتے ہیں۔ لیکن جو بات خداوند نے مجھے سکھائی، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، اچھی ہیں، خداوند ہم سب کو برکت دے، خدا طرح طرح سے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن جو بات خدا نے مجھے سکھائی کلام سے وہ یہ ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا، کیونکہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پیٹ ہی سے ایک ایسا پروسیجر ہے جسم سے پیدا ہونے کا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پانی کے ساتھ جو ہے وہ جسم کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک یہ میڈیکلی طور پر ایک پروسیجر ہے، خدا کی طرف سے قدرتی عمل ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پانی کے اندر رہتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پانی کے ذریعہ ہی سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، یعنی جسم سے پیدا ہونا ایک بڑی ہی ضروری بات ہے، کیونکہ روح کو خدا نے کس میں رکھا ہے؟ جسم کے اندر رکھا ہے، اور جسم سے پیدا ہونا بہت ہی ضروری بات ہے، کیونکہ اس جسم ہی کے کاموں کے سبب سے، اس ہماری زندگی کے اعمال یعنی اس بدن کے اعمال کے ہی سبب سے ہماری جو ججمنٹ ہے وہ ہوگی کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسی زندگی کو گزارا ہے۔ لیکن میں چند باتیں جو ہے وہ بپتسمہ کے حوالہ سے کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بپتسمہ جو ہے، پانی کا بپتسمہ انسان کو نجات نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ ایک پبلکلی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہاں وہ شخص جو بپتسمہ لیتا ہے وہ اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لے کر آیا ہے، اور وہ اس بات کو جان گیا ہے کہ اب وہ اپنے جو اس بدن سے اس نے گناہوں کو کیا اس کو آج کے بعد ترک کرے گا، اور خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لے کر اس کے اندر جو شامل ہونے کا بپتسمہ ہے، یعنی کہ جو بپتسمہ ہے جس کے اندر ایک ریولیشن ہے کہ جیسے ہم پانی کے اندر داخل ہوتے ہیں ویسے ہی وہ مسیح یسوع کی موت میں شامل ہوتا ہے، اور جب ہم پانی سے باہر نکلتے ہیں تو ہم یسوع المسیح کے جی اٹھنے میں شامل ہوتے ہیں، اور یہی ایک بپتسمہ کا عمل ہے، اور ہم اس کو پبلکلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد میں اپنے جو ماضی کے گناہ ہیں، جو پرانی انسانیت ہے، اس سے توبہ کرتا ہوں اور مسیح یسوع میں شامل ہو جاتا ہوں، کیونکہ جو کلیسیا ہے وہ یسوع المسیح کا بدن ہے، اور ہم نے خدا کی ذات الہی کے اندر کیا ہونا ہے؟ شریک ہونا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں روح سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے، اور جب ہم یہ سارا عمل کرتے ہیں اور اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب جتنے بھی بدن سے پیدا ہوئے ہیں ان کے اندر ایک مروثی گناہ موجود ہے۔ گویا کوئی یہ کہے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ میں تو اپنی زندگی بڑی ایمانداری کے ساتھ گزارتا آیا ہوں، میں نے تو آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ایک گناہ ہے جو موروثی طور پر ہمارے بدن کے اندر رہا ہے، اور وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ آدم اور حوا نے جو گناہ کیا ہے اس کے سبب سے ہماری وراثت کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر جو ہے وہ گناہ ہے، اور جب تک ہم مسیح یسوع پر ایمان نہیں لے کر آتے تب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، لیکن جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے۔ اور آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ جب انسان بپتسمہ کو لیتا ہے تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بچے کی جو پیدائش ہے وہ اب ہو چکی ہے، اب وہ بولنا سیکھے گا، اور اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر زبان بولے گا تو اسی کے اندر خدا کا روح ہے، یا اسی کے اندر صرف خدا کا روح القدس جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، تو روح القدس جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر صراحت کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بدن جو ہے
یہ गुनाहगार ہے اور तब तक रूह कुदुस जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर सकता जब तक ये बदन जो है वो पाक नहीं होगा, क्योंकि जब गुनाह हुआ बदन जो था वो नापाक हो गया, लेकिन यीशु अल मसीह ने अपना खून बहाकर हमारे गुनाहों को, हमारे दुखों, हमारी परेशानियों को, लानतों, मुसीबतों को अपने ऊपर लेकर इस बदन को क्या किया है, पाक और साफ कर दिया है। जो कोई उस पर ईमान लेकर आते हैं, जो कोई उस पर ईमान लेकर आते हैं और इस बात का इकरार कर लेते हैं, फिर वो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, हमने आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। अब 30 गुना क्या है कि वो जो रूह से पैदा हो जाता है, 60 गुना वो है जो रूह से भर जाता है, 100 गुना वो है जो रूह से चलना शुरू कर देता है। और यही वो 3 ग्रुप हैं जो आसमान पर जाएंगे, रूह से जो पैदा हुए हैं, जो रूह से भरे हुए हैं, और वो जो रूह से चलते हैं। सो हमने हमेशा इस बात को याद रखना है कि जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। और हमने इस बात को हमेशा फोकस करना है कि हमने रूह से पैदा होना है, हमने अपने मुर्दा कामों से तौबा करनी है और मसीह यीशु पर ईमान लेकर अपनी निजात के अंदर कायम रहना है, माजी के गुनाहों से तौबा करनी है, क्योंकि हम निजात पाते हैं, हम निजात पाते रहते हैं और हम निजात पाएंगे। इस बात को हमने हमेशा याद रखना है और उस तरह से जिंदगी गुजारनी है जिस तरह खुदा का बेटा यीशु अल मसीह चाहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके उसके साथ, उसके बदन में शरीक होकर उसके साथ जिंदगी गुजारे। सो मेरे अजीजों, मेरी और आपकी ये ज़रूरत है कि हम ज़रूर ही नए सिरे से पैदा हों और यीशु अल मसीह की जो मर्जी है उसको अपनी जिंदगी के अंदर पूरा करें। लेकिन यहां पर एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल पैदा होता है, क्योंकि जब निकोदेमस जो यहूदियों का सरदार है वो इन बातों को सुनता है तो वो बड़ा ही परेशान होता है। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है 7वीं आयत के अंदर, यीशु अल मसीह ने इस बात को जान लिया और वो क्या फरमाते हैं, ताजुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। बहुत सारे लोग आज भी जब नए सिरे से पैदा होने के बारे में सुनते हैं तो उनकी माइंड के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको वो जानना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने भी इसका जवाब दिया है। उसने निकोदेमुस को फरमाया है कि ताजुब ना कर, क्योंकि हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। सो हम हवा को नहीं देखते, लेकिन जब वो चलती है तो हम टहनियों को हिलते हुए देखते हैं, जो हवा के सबब से हिलती हैं, लेकिन हवा को नहीं देखते। इसी तरह यीशु मसीह ने फरमाया कि जब कोई नए सिरे से पैदा होता है वो भी ऐसे ही है कि किस तरह से रूह कुदुस जो है वो उसकी जिंदगी में काम करता है। और जब वो जिंदगी के अंदर काम करता है तो बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर पैदा होती हैं। और मैं चंद ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा, चंद ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा। पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है नए सिरे से पैदा होना जो है वो, आप इस बात को हमेशा याद रखें कि फिजिकल तौर पर नहीं है। क्या है? फिजिकल तौर पर नहीं है बल्कि रूहानी तौर पर है, जिसका जिक्र हमने पढ़ा यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 3री आयत के अंदर कि किस तरह से यीशु अल मसीह ने यह फरमाया है कि अगर कोई ये चाहता है कि वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाए, उसका वारिस बन जाए, हमेशा की जिंदगी को हासिल कर ले, तो वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि वो नए सिरे से पैदा ना हो जाए। दूसरी बात बहुत ही अहम है कि गुनाह की माफी के लिए तब्दीली का या नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है।
क्योंकि गुनाह के सबब से नस्ल इंसानी के अंदर मौत आई है। और जब हम गुनाह से तौबा करते हैं तो खुदा फिर हमारी दुआ को उसी वक्त सुनता है और हमें मुआफ करता है, क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है, कादर मुतलक है। और वो इस बात को जानता है कि अगर कोई उसका बेटा और बेटी जब अपने किए हुए गुनाहों से माफी मांगता है और अपने जहन को यानी तौबा करता है, तब्दील करता है, मुर्दा कामों से अपने आप को दूर करता है और ये वायदा कर लेता है कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक, उसकी ताबेदारी में रहते हुए गुजारूंगा, तो यकीनन मैं आपको एक गारंटी, एक श्योरिटी देता हूं कि खुदा की जिंदगी के जो इलाही मंसूबे हैं वो फिर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन नए सिरे से पैदा होना बहुत ही जरूरी है। एक और बड़ी खास बात हमें, जो तीसरी बात पता चलती है, जिसका जिक्र हमें मत्ती की इंजील 18 बाब उसकी 3री आयत के अंदर मिलता है कि किस तरह से यीशु अल मसीह ने फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। अब यहां पर एक बात बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बताई गई है कि हमारा ईमान जो है वो बच्चों का सा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उन पर ईमान रखते हैं। और ईमान अनदेखी चीजों का ही सबूत है। वो नहीं जानते कि कहां से और कैसे उनको ये चीजें, जो कुछ भी वो मांगते हैं, मुहैया होती हैं, लेकिन वो बिलीव करते हैं, ईमान रखते हैं। इसी तरह खुदा भी हमसे ये चाहता है कि अगर कोई बादशाही के अंदर, खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होना चाहता है तो इसका ईमान जो है वो बच्चों की मानद होना चाहिए। इसके बाद चौथी बात कि जब हम तौबा करते हैं और माफी मांगते हैं तो यकीनन हमारी जिंदगी के अंदर एक नया काम होता है, और जिसका जिक्र हमें अमाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर मिलता है। और लिखा है कि बस तौबा करो, तुम्हारे गुनाह क्या हो, मिटाए जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस तरह से खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर नए दिन, न्यू बिगिनिंग जो है वो शुरू हो जाए, शादमानी आए, खुशी आए, तो मैं आपको मेरे से ये बताना चाहता हूं, वो लोग जो आज भी अंधेरे के अंदर हैं, जो आज भी गुनाहों के अंदर जकड़े हुए हैं, आज भी वो कहीं ना कहीं फंसे हुए, अगर वो अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं तंग आ गए हैं तो तौबा करें। तौबा करके मसीह यीशु पर ईमान लेकर आए और अपनी जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह को दोए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि खुदा की तरफ से, अभी मैंने कलाम को पढ़ा कि ताजगी के दिन जो है उसके हजूर से फिर आपके लिए आना शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी जो बात, आखिरी पॉइंट, जो 5वां पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि अगर हम बाइबल मुकद्दस में से पहला पतरस उसका 1 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात नए सिरे के हवाला से हमें मिलती है। और बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है कि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिल और जान से आपस में मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से, हालेलुया, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। आज मेरे अजीजों, जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, जब वो लोग जो नए सिरे से पैदा होते हैं या होने की ख्वाहिशमंद है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से जो मोहब्बत है वो भी फिर आपकी जिंदगी के अंदर काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने की जरूरत है, क्योंकि खुदा भी मोहब्बत है, यहां तक कि हमें अपने दुश्मनों के भी साथ मोहब्बत रखने की जरूरत है। और ये तब ऐसी तब्दीली आती है कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो एक नई तब्दीली जो है वो हमारी जिंदगी में काम करती है। और फिर ना सिर्फ हम अपनी
आपसे बल्कि अपने मानिंद जो अपने पड़ोसी से है उससे भी मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये एक बड़ी तब्दीली है जो हमारी जिंदगी के अंदर हम जब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, माफी मांगते हो, तो ये एक मोहब्बत का जो अमल है वो भी हमारी जिंदगी में सराहत करना शुरू कर देता है और हमारे मोहब्बत का जो लेवल है दूसरों के साथ वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज मेरी और आपकी ये जरूरत है कि हम अपने मुर्दा कामों से तौबा करें, ऐसी दलदल से निकल आए, शराब पीना छोड़ दें, ऐसे गुनाहों के अंदर अगर हम जकड़े हुए हैं, अगर ज़नाकार हैं, अगर हम नाफरमान हैं, पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं। सो मेरे अजीजों, वो लोग जो खुदा को नहीं बल्कि गैर मबूदों की तरफ झुकते हैं और उनकी परस्तिश करते हैं, मेरे चीजों में बताना चाहता हूं, आइए आज भी आपके लिए वो दरवाजा खुला हुआ है जो देखने में तो तंग है लेकिन उसमें हमेशा की जिंदगी है, और वो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है जो राह, हक और जिंदगी है, जिसके वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो यीशु अल मसीह है। अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, अगर आप अबदी निजात चाहते हैं, अगर आप खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। आइए आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। ऐसे लोग जो आज भी अंधेरे में हैं, गुनाह के अंदर मौजूद हैं और ऐसी दलदल और दुख, मुसीबत, परेशानी के अंदर हैं, मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुदूस कुदूस मेहरबान वफादार आसमानी बाप, बैरो बर के खालिक और मालिक, आसमान और जमीन को बनाने वाले जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने हमें अपनी लाइकनेस, अपनी इमेज पर बनाया है और हमें एक अथॉरिटी, एक पावर दी है। ऐ खुदा यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के वसीला से ऐ खुदा आज भी वो लोग जो है खुदा कहीं ना कहीं गुनाह के अंदर और गुनाह की दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं कि वो लोग, वो बेटे बेटियां वापस लौट आए और तौबा करें और ऐ खुदा तुझ पर ईमान लाकर ऐ खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो, अब्दी निजात को हासिल करें, हमेशा की जिंदगी को हासिल करें जो तेरी तरफ से ऐ खुदा एक मिराज की सूरत है, क्योंकि तूने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो अबदुल बाद के लिए कायम रहे, और ये तब ही हो सकता है जब कोई ऐ खुदावंद वो यीशु अल मसीह पर ईमान लेकर आए। ऐ खुदावंद तो ऐसा मुमकिन कर ताकि लोग तौबा करें, अपनी जिंदगी को तब्दील करें, क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है, वक्त नजदीक है, हम आखिरी घंटा के अंदर ऐ खुदावंद मौजूद है। मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, दरखास्त करता हूं और ऐ खुदावंद तेरे रहम और फजल को ऐ खुदावंद तमाम ऐ खुदावंद जिंदगी पर मांग लेता हूं, ताकि अपना रहम और फजल ऐ खुदा उनको दिखा, वो जाने कि तू कितना अजीम है और तेरी नजात कितनी अजीम नजात है, तेरी बादशाही कितनी अजीम है। ऐ खुदावंद मैं ये सब कुछ मांगता हूं ये जान कर, क्योंकि तेरा कलाम ये सिखाता है कि जो दुआ तुम ईमान से मांगते हो यकीन कर लो कि तुमको मिल गया और मिल जाएगा। मसीह यीशु के नाम से मैं ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। की वॉचिंग बिलीव टीवी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।